or do you want me to repeat it again? Should I start it again? एक बार फिर से start करना है, क्या करना है? Or do you want me to go to the next topic? एक बार revisit करूँ फिर से फटाफट? हाँ सर. Okay. So in 8051 that we have seen whatever the topic we have seen covered in second module. The third module deals with interfacing with some other devices. Okay, so interfacing में हमें multiple devices को देखना है and उस devices के साथ basically 8051 connect कैसे होता है ये हमें बताना है उसमें basically. Okay, so yeah, just a second. Yeah, so हमारे पास we have 8051, okay, and we have our ADC, okay. So in दोनों के बीच में what are the steps involved? Can someone tell me? This is my 8051, okay, and this is my ADC. So what are the steps involved in interfacing it? Can someone tell me? सबसे पहले क्या करते हैं हम? What do we do? We select what? First tell me what is ADC. Can someone tell me what is ADC? It is Analog to digital converter. It is analog to digital converter. Analog to digital converter का मतलब क्या है? It will convert analog signal into digital signal. What is analog signal then? Analog signal का मतलब क्या होता है? Anything in form of voltage. Anything which is in the form of voltage that you want to convert it into digital format. Digital का मतलब data. Okay, so it can be 1010 or it can be 1F, 2F, 3F. Yeah, anything which is in hexadecimal, anything which is in decimal, or anything which is represented in the form of 1 and 0, that is called as data. Okay, so data में convert करने के लिए आपको ADC use करना पड़ेगा, right? So ADC जो है आपका, उस ADC के अंदर स्पेशली जो हम यूज कर रहे हैं that is called as 0809. Okay, this is the ADC that we are using. So what it is doing is basically it takes an input from any of the input channels. And how many input channels it has? कितने input channel होते हैं इसके पास? 8. It has 8 channels. किसी 8 input channel में से किसी एक input channel को select करेगा, and after selecting that, whatever is the voltage which is given to that particular ADC, it will try to convert that voltage into 8-bit data. 8-bit data में convert करने के बाद, after converting, ADC will transfer that 8-bit data to your 8051 microprocessor. Okay, so this is the program. This is how we do the interfacing. Okay, so हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले before starting with conversion, सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा चैनल हमारा एक्टिव है. Okay, in order to identify which channel is active, I will be giving to a pin which is called as CBA or ABC. We can call it like that. Okay, और ये पिन पे मैं इनपुट दूंगा from 8051 से मैं इनपुट दूंगा इस पर्टिकुलर पिन पे. Okay, so if I give the input as 0 1 1, that means I'm activating which channel? It is channel 3. I'm activating channel 3. So channel 3 पे whatever is the voltage, so let's assume this is channel 3. Whatever is the voltage which is coming on channel 3, that voltage will get converted into 8-bit data. Is the concept clear now? Is it clear? Yes. Yeah. So first thing that we do is basically we send the data. We select the channel. After selecting the channel, we take the input. Okay. So for taking the input, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस पे जो भी input आ रहा है, which is in the form of voltage generally follows sinusoidal wave. Okay. So sinusoidal wave में जो भी input आ रहा है, उस input को हमें capture करना पड़ेगा for a particular moment. Okay. In order to capture it, we latch it. Okay. So in order to latch it, हम उस signal को, we are talking about ALE, उस signal को हमें 1 और 0 करना पड़ेगा. Okay. So ALE is, what is the use of ALE? It is used for capturing that data, capturing that voltage at that instant. तो इसको capture करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? ALE पे क्या करना पड़ेगा? What we have to do at ALE? ALE पे क्या करना पड़ेगा? We have to make it as 1. That means your latch has been started, and as soon as it has started, you have to stop it. बराबर ना? So for capturing that moment, we have to make our ALE
turn on and then turn it off. Okay, why? Because your capacitor, you want to charge your capacitor. Okay, so capacitor में जो भी charge होगा, that will be your captured voltage. Whatever the voltage has been captured now, it will get converted into data. Is it clear? What is the role of ALE? Is it clear? Yes, sir. Yeah. So after ALE, after your data has been converted, after your data has been captured, or after your in voltage that you want to convert, that voltage after you have captured it, you can start with the conversion. Okay, so there is a pin in ADC which is called as SOC. इस SOC को आपको 1 बनाना पड़ेगा. Okay, so SOC 1 बनते ही आपका कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा. Okay, स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन के बाद आपका कन्वर्जन चालू हो जाएगा. कन्वर्जन के लिए वी यूज एन एल्गोरिथम व्हिच इज कॉल्ड एज SAA. ओके, ये SAA क्या करेगा, जो भी आपका वोल्टेज है व्हिच इज लाइक 2.7 या 5.3, okay, whatever is the voltage that you have collected in your capacitor, it will try to convert it into binary format. Okay, so it will try to convert it into 8-bit data. So 1 0 0 1 0 0 1 0, इसका कुछ ऐसा आउटपुट आएगा. 5.3 का कुछ आउटपुट ऐसा आएगा. 1 1 1 1 0 1 0 1, ऐसा कुछ आउटपुट आएगा. Okay, so how does this output come? It comes from SAA, which is successive approximation algorithm. Okay, we are not studying SAA, we are just studying how to interface it with 8051. Okay, so हमने start of conversion कर दिया. conversion वो कैसे कर रहा है वो हमें लेना देना नहीं है. हमें सिर्फ डेटा जो कन्वर्ट होके आएगा उसको 8051 तक पहुंचाना है. Okay, so after the data has been converted, after your voltage which has been captured in capacitor by ALE, after that voltage has been converted, then ADC will inform 8051 ki yes, I have converted whatever you required by sending a signal on a pin which is called as, what is the pin we are talking about now? EOC. It is EOC. So EOC stand for End of conversion. End of conversion. So your ADC will inform your 8051 that I have converted whatever was the data which was present in your capacitor, which you asked me to convert it. Okay, I have converted that. Okay, so by sending EOC, it will inform 8051 that I have converted your data. Okay, on receiving the end of conversion, 8051 has understood. 8051 को इतना समझ में आ गया कि आपका डेटा जो है, जो वो एक्सेप्ट करना चाहता था, वो डेटा जो है आपका वो कन्वर्ट हो चुका है. ओके, अब जो बिकॉज डेटा हैज बीन कन्वर्टेड नाउ, it can use or it can ask for that data. वो डेटा से को मांग सकता है. In order to ask that data, 8051 will make ADC का एक pin which is called as output enable. It will make that pin what? It will make that pin what? 1. So output enable को ये 1 कर देगा. 1 करते इसका मतलब क्या होगा कि जो भी ADC के अंदर जो भी डेटा प्रोड्यूस हुआ था after conversion, whatever is the 8-bit data, I want that data. In order to get that data, okay, मुझे क्या करना पड़ेगा? Output enable on करना पड़ेगा. Output enable से क्या हो जाएगा? That door will get open and whatever the data has been produced, now I can transfer it to my 8051. Okay, so how to transfer it? जो भी 8-bit data था, वो 8-bit data आप किसी भी एक पोर्ट पे ले लो. Okay, either P0, P1, P2, P3. So let's assume we are taking at P0 port. Okay, या P1 पोर्ट पे हम इसको ले लेते हैं. Okay, so P1 has got all the data. Okay, कहाँ से आया है ये data? From 2 raised to -1 to 2 raised to -8. यहाँ से ये data है. Okay, which is ADC. Who has generated the data? Generate किसने किया है? Who has generated this data? ADC. ADC ने ही generate किया है. इनपुट किसने लिया है? ADC ने इनपुट लिया है. तो 8051 के पास क्यों दे रहे हैं हम लोग? क्योंकि 8051 एक प्रोसेसर है तो वो कन्वर्ट उसको आगे मैनिपुलेट करना है उस डेटा पे. सो डायरेक्टली बिकॉज जनरली व्हाटएवर यू गेट इज इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, उसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद आपको उसको डेटा में जब कन्वर्ट कर लेते हो देन यू हैव टू ट्रांसफर इट टू 8051. ओके, तो सिमिलरली एडीसी जो है यहाँ पे इनपुट वोल्टेज लेगा. आफ्टर टेकिंग दैट इनपुट इट विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू डेटा. वंस द डेटा हैज बीन कन्वर्टेड यू विल ट्रांसफर इट टू 8051. इज द कांसेप्ट क्लियर नाउ? Is it clear? Yes, sir. Yeah. So अभी हम लोग सिर्फ देख लेते हैं कि कौन कौन से पिन पे क्या क्या कनेक्टेड है 8051 का. So CBA को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू पिन P2.0. तो हम लोग मान लेते हैं दिस इज पिन P2.0, दिस इज पोर्ट 2.1,
दिस इज पोर्ट 2.2. ओके, ये मैंने 3 पिन को कनेक्ट कर दिया. ओके, उसके बाद बाकी जो पोर्ट है वो हम लोग उसको ग्राउंड से कनेक्ट करते थे. जो बाकी बच गए, व्हाट आर द लेफ्ट पोर्ट्स व्हिच इज रिमेनिंग? पोर्ट 2 में क्या क्या बच गए? 0.3 2.7. या सो P2.3 से लेके P2.7 तक हम उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं. इसका मतलब वो क्या बन जाएगा? 0. ओके, उसके बाद हम लोग पोर्ट 3 से स्टार्ट करते हैं. सो पोर्ट P3.0 को हम लोग लैच बना लेते हैं. ओके, उसके बाद P3.1 को हम क्या करते हैं? एंड ऑफ कन्वर्जन कर देते हैं. स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन P3.1 फिर से हम सेंड करते हैं. ओके, एंड ऑफ कन्वर्जन इज वी आर गेटिंग इट. सो वो एक इनपुट पोर्ट है, तो उसके लिए हम लोग अलग पोर्ट यूज करते हैं. सो विल यूज P0.0 फॉर दिस. ओके, आउटपुट एनेबल के लिए हम लोग P3.2 यूज करते हैं. ओके, P3.2. ओके, बाकी सब काम हो चुका है, तो हम लोग का P3 भी कुछ ही पार्ट यूज हुआ है. ओके, सो विल जो वॉट एवर इज रिमेनिंग, क्या क्या रिमेनिंग है P3.3 से लेके P3.7 तक, दैट पार्ट इज रिमेनिंग. So we'll try to ground that pin. Okay, उन pin को हम ground कर देते हैं. Okay, so this is on this basis you have to write down the program. So tell me what is the first thing that you will do. Program में क्या करोगे? I just want to transfer a single 8-bit data. मैं 10-bit data मैं transfer नहीं करना चाहता. I want to transfer just 8-bit data. So what is the first thing that I will do? मुझे सिर्फ और सिर्फ 8-बिट डेटा जो भी मेरा जनरेट हुआ है उसको ट्रांसफर करना है टू 8051. आई डोंट वांट टू ट्रांसफर 10 8-बिट डेटा. मुझे 10 8-बिट डेटा ट्रांसफर नहीं करना, सिर्फ एक 8-बिट का डेटा मुझे जनरेट करना है और उसको ट्रांसफर करना है 8051 से. तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? R7 और R0 को इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो. सो मुझे पोर्ट जो मेरा इनपुट पोर्ट है उसको इनपुट पोर्ट बनाना पड़ेगा. बाय डिफॉल्ट ऑल द पोर्ट्स आर व्हाट? By default all the ports are what? Can you tell me? सारे पोर्ट क्या होते हैं? Am I audible? मेरी आवाज पहुंच रही है? Yes, sir. या सो 8051 में टोटल 4 पोर्ट है. सारे के सारे पोर्ट क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट दे आर आउटपुट पोर्ट. वो आउटपुट देते हैं. ओके, इन ऑर्डर टू गेट द इनपुट उस पोर्ट को हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. हाउ टू कॉन्फ़िगर इट? बाय मेकिंग FFH. सो उस पोर्ट पे जिस पे आपको इनपुट लेना है उस पोर्ट को आपको इनपुट पोर्ट बनाना पड़ेगा. इन ऑर्डर टू डू दैट आप उस पोर्ट पे FF पास करोगे. सो आउट ऑफ 4 पोर्ट दैट वी हैव P0 P1 P2 P3, इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से कौन से पोर्ट इनपुट पोर्ट है? कैन यू टेल मी व्हिच आर द इनपुट पोर्ट? व्हिच पोर्ट इज एक्टिंग एज अ इनपुट पोर्ट? P1 and P0. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे P1 इनपुट ले रहा है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो P0 इनपुट ले रहा है. बाकी P3 जो है ये आउटपुट दे रहा है, P2 जो है वो आउटपुट दे रहा है. बराबर है. सो दैट मींस वी कैन से P1 एंड P0 आर द इनपुट पोर्ट. सो पहले इन दोनों पोर्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? इनपुट पोर्ट बनाना पड़ेगा. हाउ टू मेक इट एज इनपुट पोर्ट? मूव व्हाट? Move what? P1, FFH. P1, FFH. Okay, so we'll just write down. Yeah, so move P1 या P0 से स्टार्ट करते हैं. P0, #0 FFH. Okay, then move P1, #0 FFH. इससे हमने क्या किया? पोर्ट 1 और पोर्ट 0 दोनों को हमने क्या बना दिया? What do you have made it? Input port. इनपुट पोर्ट. अब ये दोनों इनपुट पोर्ट बन चुका है. अब हमें क्या करना? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू? जितने भी कंट्रोल सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल मतलब जितने भी एडीसी के अंदर जो भी पिन है जिससे एडीसी को कंट्रोल किया जा सकता है, जिस पिन से, उस पिन को हम लोग क्लियर कर देंगे फर्स्ट एंड देन विल सेट इट और क्लियर इट बाद में हम लोग करेंगे. बट इनिशियली हमें उसको क्लियर करना पड़ेगा. सो व्हाट आर द सिग्नल व्हिच बेसिकली कंट्रोल्स योर ALE? सो कंट्रोल करने के लिए वी हैव एड्रेस लैच एनेबल. ओके, देन वी हैव स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन एंड देन वी हैव आउटपुट एनेबल. सो ये 3 पिन को हमें क्लियर करना पड़ेगा. ओके,
सो विच पिन आर वी टॉकिंग अबाउट? उसको क्लियर करने के लिए हमें कौन से पोर्ट पे क्या देना पड़ेगा? कैन समवन टेल मी? Clear P3.0. क्लियर P3.0, क्लियर P3.0। सो ये किसको क्लियर कर रहे हैं हम? किसको क्लियर करने जा रहे हैं हम लोग? ALE. सो ALE हैज बीन क्लियर्ड नाउ। देन और किसको क्लियर करना है? क्लियर 3.1 P3.1 P3.1। इससे क्या क्लियर हो गया? SOC. SOC SOC। इसके बाद किसको क्लियर करना है? P3.2 P3.2। इससे क्या होगा? आपका जो डोर था विच इज आउटपुट एनेबल, उस एनेबल को क्या किया? उस डोर को क्या किया आपने? डिसेबल कर दिया फिलहाल के लिए। इज इट क्लियर? इज दिस 3 पॉइंट क्लियर? ये 3 लाइन क्लियर हुआ है? क्यों किया है आपने ये? ताकि जो भी आपके प्रोग्राम का प्रीवियस स्टेटस था उस प्रीवियस स्टेटस को आपको उड़ाना है। ओके, यू वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम फ्रेश। ओके, इज द कांसेप्ट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? Yes. Yeah. अब आपको क्या करना है? What you want to do now? You want to select the channel. First step, just look at the diagram. नीचे से start from the bottom. Okay. So this is your first step. This is your second step. This is your third step. Okay. This is your fourth step. So यही चीज को आपको follow करना है. Fifth step and last is your sixth step. Okay. So यही step को आपको follow करना है and आपको program लिखना है. So what is the first step that you want to do? Select the channel, right? Right? Yes. Yes. तो सिलेक्ट द चैनल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज इट थिंग? क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा और किस पोर्ट पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? पोर्ट 1 पे ट्रांसफर करना पड़ेगा कुछ डेटा, पोर्ट 2 पे, पोर्ट 3 पे, पोर्ट 0 पे, किस पे ट्रांसफर करना है? पोर्ट 2 पे। अगर मैंने पोर्ट 2 पे ट्रांसफर किया तो पोर्ट 2 पे जो लास्ट के 3 बिट है व्हिच इज 0 1 2 वो एबीसी से कनेक्टेड है और उसके बेसिस पे आपका चैनल सेलेक्ट हो जाएगा, राइट? सो व्हाट शुड आई सेंड ऑन पोर्ट 2? कैन समवन टेल मी? पोर्ट 2 कितने बिट का पोर्ट है? पोर्ट 2 कितने बिट? इट इज अ 8 बिट पोर्ट, राइट? उस 8 बिट पोर्ट में ओके, उस 8 बिट पोर्ट में कितने बिट को हमने ग्राउंड कर दिया है? सो दिस इज 2.7, ओके, दिस इज 2.6, दिस इज 2.4 सॉरी 2.5, देन 2.4, 2.3। ओके, ये इतने सारे बिट को हमने क्या कर दिया है? ग्राउंड, राइट? तो ग्राउंड कर दिया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 0 0 0 0। बाकी 3 जो पिन थे आपके विच इज 2.0, 2.1 एंड 2.2, इन तीनों पे क्या पास किया है हमने? व्हाट यू वांट टू पास इट ऑन दिस पिन? व्हाट डू यू वांट टू पास? एम आई ऑडिबल? 0 1 1. सो 0 1 1 आप पास करोगे यहाँ पे। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर इज द रिक्वायरमेंट, अगर 0 1 1 पास कर दिया तो आप कौन सी चैनल सेलेक्ट करोगे? 3 3। 1 0 1 पास किया तो क्या सेलेक्ट करोगे? 2 1 0 1। इफ यू पास 1 0 1 5 इट इज 5। 5 ओके, देन अगर 0 1 0 अगर पास किया तो 0 1 0 2। 0 0 1 पास किया तो 1 1 एंड ऑल 0 पास किया तो 0. 0। सो चैनल 0 सिलेक्टेड हो जाएगा। ओके, सो राइट नाउ एज पर आवर क्वेश्चन हम सेलेक्ट करें चैनल 3 को। सो चैनल 3 को सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 0 1 1 डालना पड़ेगा। सो ओनली these 3 pin will this 3 bit will change depending on the question that is being asked. Rest all the pins will be made as 0. Okay, so यहाँ पे what is the data that you want to transfer on port 2? This is your port 2. उस port 2 पे आप क्या data transfer करना चाहोगे? Tell me the data in the form of hexadecimal. So this 4 is 0 and this 4 is what? 3. Yes. 0 3h तो यहाँ पे क्या मूव करोगे आप और कहाँ पे मूव करोगे? Move P2 comma hash 0 3 hash. Yeah, so move P2 comma hash 03h. Is this point clear now? ये क्यों किया हमने? Why we have done this? To do what? Select channel 3. Select channel 3. So इसका रीजन समझ में आ गया? इसका समझ में आ गया चैनल का क्यों सिलेक्ट किया हमने? बिकॉज जो भी चैनल सिलेक्ट करोगे वो अब आपका इनपुट चैनल बन जाएगा एंड वहां पे जो भी वोल्टेज आएगा वो उस वोल्टेज को आपको कन्वर्ट करना है। सो इस ये जो स्टेप है व्हिच इज मूव P2 #03 आपने चैनल सिलेक्ट करने के लिए यूज किया है। ओके, नेक्स्ट आपने चैनल सिलेक्ट कर दिया है, आपने ये वाला पार्ट पूरा कर, आई जस्ट क्रॉस इट, जो पार्ट हो चुका है हम उसको क्रॉस कर देंगे। ओके, सो दिस पार्ट हैज बीन डन। अब आपको कहां पे जाना है?
लैच को क्या करना है? 1 and 0. 1 and 0 करना है. क्यों करना है 1 and 0? What is the need of doing that? Capturing the signal. कैप्चरिंग द सिग्नल. कैप्चरिंग कहाँ पे होगा वो? कैपेसिटर. कैपेसिटर. व्हाई यू वांट टू कैप्चर इट? बिना कैप्चर करके काम नहीं हो सकता क्या आपका? व्हाई डू यू वांट टू कैप्चर इट? बिकॉज जो आपका वोल्टेज है वो साइनसॉइडल है, वो हर इंस्टेंट पे इट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो जो भी इंस्टेंट पे आपको कैप्चर करना है, आपको उस लैच को स्टार्ट और स्टॉप करना है. एज सुन एज आपने इसको स्टार्ट और स्टॉप किया, वो सैंपल पे, उस सैंपल पे व्हाटएवर इज द वोल्टेज, इट विल चार्ज योर कैपेसिटर एंड दैट वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना है इनटू डेटा. इज द कांसेप्ट क्लियर? व्हाई यू आर यूजिंग ALE? बिकॉज योर वोल्टेज दैट इज इनकमिंग, दैट वोल्टेज will fluctuate. उस वोल्टेज जो फ्लक्चुएट हो रहा है, बिकॉज इट इज एनालॉग इन नेचर, वो फ्लक्चुएट हो सकता है, कभी भी बदल सकता है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को वेदर फोरकास्टिंग से या मेरे को वेदर सेंसर यूज करके मैं वेदर चेक करना चाहता हूँ, तो दैट वेदर, अभी कुछ वेदर अलग है, एक सेकंड के बाद वो वेदर अलग हो जाएगा. ओके, ऐसा नहीं कि मैं मतलब समर है तो अचानक से एक सेकंड के बाद विंटर हो जाएगा. बट whatever is the value that you're getting, whatever the temperature that you're getting, there might be a little bit fluctuation in point or in decimal. कहीं ना कहीं there will be a fluctuation, right? So वो fluctuation ना हो, आप क्या करोगे उस instant पे? you'll just capture it and will try to display it कि अभी फिलहाल 11:03 पे what is the temperature right now. Okay, so that is how ALE is being used. It will try to capture that voltage. और वो कैप्चर कैसे करेगा? by making your ALE as 1 and 0. जैसे ALE 1 हुआ और जैसे ALE 0 हुआ, उनके बीच में जो भी डिले था, उस डिले में उसने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया. So whatever is the value stored in capacitor, it will try to convert that value into data. Is it clear? Is that part clear? Yes, sir. तो अभी ये जो ALE को मुझे स्टार्ट करना और स्टॉप करना है, ALE को कंट्रोल कौन कर रहा है? कौन सा पिन कंट्रोल कर रहा है ALE को? P3. P3.0. So P3.0 को स्टार्ट करना और स्टॉप करना. So what should I do? यानी दो लाइन का इंस्ट्रक्शन है. कैन यू रिपीट अगेन? आई एम अनएबल टू हियर इट. क्या करना पड़ेगा P3.0 को? Set B P3.0. सो सेट बी मैंने करना है. सेट बी करने से क्या हो जाएगा? P3.0 क्या हो जाएगा? P3.0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. 1 हो जाएगा मतलब स्टार्ट हो जाएगा. दैट मींस योर लैच हैज बीन स्टार्टेड एंड यू वांट टू स्टॉप इट आल्सो. आपको फौरन स्टॉप भी करना है. सो स्टॉप करने के लिए क्या करोगे आप? Clear. P3.0 को आपको क्लियर करना पड़ेगा. टू क्लियर इट. ओके, सो इससे क्या होगा? what you'll get from these two line of the instruction, you started the latch and you have stopped the latch. okay, so ALE को आपने स्टार्ट और स्टॉप किया है. एंड इनके बीच में जो फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट जो भी डिले था, ओके, एक मशीन साइकिल से दूसरे मशीन साइकिल के बीच में, उस मशीन साइकिल में जो भी आपका डिले था, उसमें जो भी आपके कैपेसिटर के अंदर जो भी चार्ज था, वो कैपेसिटर को चार्ज कर देगा. एंड व्हाटएवर द चार्ज हैज बीन चार्ज्ड इनटू योर कैपेसिटर और इट हैज बीन स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, नाउ यू विल ट्राई टू कन्वर्ट दैट वैल्यू इनटू डेटा. इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? ये दो लाइन का मतलब समझ में आ गया? क्योंकि आपने आप ALE को स्टार्ट कर सको, स्टॉप कर सको. एवरीबॉडी इज इट क्लियर? संतोषी, शिखा, अंकिता, Yes, sir. समर्थ, इज इट क्लियर? Yes, sir. या सो वी हैव डन. हमने ALE को स्टार्ट कर दिया, स्टॉप कर दिया. आफ्टर डूइंग दैट हमारा ये लाइन का काम भी खत्म हो गया. वी आर डन विद दिस लाइन. अब क्या करना? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू आफ्टर कैप्चरिंग द वोल्टेज? अब आपको क्या करना है? वी वांट टू कन्वर्ट इट या सिर्फ उधर ही रुक जाना है? SOC. SOC आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. कन्वर्ट करने के लिए ADC को आपको बोलना पड़ेगा प्लीज स्टार्ट योर कन्वर्जन. इन ऑर्डर टू टेल ADC टू स्टार्ट योर कन्वर्जन, आपको P3.1 पे 1 पास करना पड़ेगा बिकॉज P3.1 इज कनेक्टेड टू SOC. ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर? क्लियर और सेट? सेट बी. इट इज सेट बी. और किस पिन को सेट करना है आपको? P3.1. P3.1 को. ओके, P3.1 को आपको सेट करना है. सो व्हाट यू आर गेटिंग ओवर हियर? यू आर इन्फॉर्मिंग व्हाट? स्टार्ट द कन्वर्जन. ओके, सो कन्वर्जन इज बीइंग स्टार्टेड. एंड कन्वर्जन के लिए जो इनपुट था, वो इनपुट कहां से लोगे? वेयर इज इनपुट कमिंग फ्रॉम? द कैपेसिटर. जो आपने
लैच से स्टार्ट और स्टॉप करके आपने कैपेसिटर में स्टोर किया, तो दैट वोल्टेज इज नाउ टेकन एज अ इनपुट and that input is now being converted into data. Is it clear? Is it clear? Yes. So start of conversion का line भी हो चुका है. What is the next thing that you want to do? आपको end of conversion करना है. लेकिन end of conversion आप नहीं कर सकते because you are a processor. आपको wait करना पड़ेगा end of conversion होने के लिए. So you have to wait at that moment. उस line के लिए आप उस line पे आपको wait करना पड़ेगा. So what you have to do? P3 point, just a mistake. Okay, just a second. Yeah. तो P3 point या P0 point किस लाइन पे आपका 1 या 0 आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कन्वर्जन हो चुका है? P0.0. तो P0.0 पे अगर आपका 1 आएगा या 0 आएगा, आपको वेट करना पड़ेगा उस पॉइंट, उस पिन पे. So for doing that, we have a syntax or we have an instruction which is called as jump if not bit. What is the meaning? Can someone tell me? What is the meaning of JNB? What is the meaning of this instruction? Can someone tell me? It will jump till the value of P0.0 is not 1. या सो P0.0 जो है, जब तक वो 1 ना बन जाए तब तक वो वेट पे जंप करता रहेगा. ओके, सो वेट कहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा? वेयर वी वांट टू डिफाइन इट एट द स्टार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, कहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा वेट को? विल डिफाइन एट द सेम लाइन बिकॉज वी वांट टू जंप ऑन द सेम लाइन. हमें बाकी काम नहीं करना है, बाकी काम हो चुका है. हमें वेट करना है तब तक जब तक P0.0 1 ना बन जाए, तब तक हमें उसी लाइन पे जंप करना है. इज दिस लाइन क्लियर? Why we are doing this? What is the need of doing this? ताकि end of conversion का confirmation आ जाए कि your end of conversion या conversion has been done. So उस confirmation का हम wait कर रहे हैं. Who is waiting? Your processor is waiting. Is it clear? Is this line clear? Yes. Yeah. So once end of conversion ADC यहाँ पे बोलेगा यार आपका ये लो 1 मैंने भेज दिया है, इसका मतलब end of conversion हो चुका है, conversion आपका हो चुका है. अब आपको डेटा लेना है या नहीं लेना है, ये आपके ऊपर है. बट मेरा जो काम था for ADC का काम क्या है? To analog से digital में convert करना, वो मैंने कर दिया है. So ADC will inform by making that line as 1. और वो लाइन कहाँ पे आ रही है? Where it is connected? It is connected to P0.0. So P0.0 पे जैसे ही 1 आएगा, it will break out of that loop. वो लूप से बाहर आ जाएगा. Okay? So लूप से बाहर आते इसका मतलब क्या हो चुका है? End of conversion हो चुका है. लूप में रहेगा इसका मतलब still the conversion is going on. Okay? So once the loop has been broken, यानी ये लाइन का काम हो चुका है, अब आपको क्या करना? What is the next thing that you want to do? After the conversion has been done, you have to enable the output, यानी आपको डोर को ओपन करना. You want to collect that data. So for collecting the data, what is happening? What you have to do? इस पिन पे 1 करना पड़ेगा in order to make that P3.2. P3.2 को आपको क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा. Why? Because you have to enable the output. Output enable आपको करना है. So P3.2 को 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? What is the instruction that we do? Clear or set? Set B. तो सेट भी करते ही P3.2 मेरा 1 हो जाएगा and that will make, because it is connected to output enable मेरा 1 हो जाएगा. Output enable 1 होते ही whatever is the data which is present or which is generated at 2 - 1 raised to 2 - 8, that data because it is connected to port 1, it has been transferred to port 1. यानी वो सारे जो पिन port 1 से connected थे वो port 1 पे डेटा आपका ट्रांसफर हो चुका है because the door has opened now. Okay, that means port 1 के पास डेटा आ चुका है. अब आपको क्या करना था? You want to transfer 8-bit data to a processor, but अभी तक वो port 1 तक पहुंचा, processor तक पहुंचा नहीं. तो port 1 से डेटा कहाँ पे जाना चाहिए? Where you want to take accumulator. So what is the instruction that you want to do? Move A, P1. Move A, P1. So this is the end of the program. खत्म हो गया. And you want to end करने के लिए what is the thing that you want to do? Short jump. S jump here, jump to a location called as here, and this is the line which is called as here. So you want to jump onto that line again and again. Okay, so this is the end of the program. What you have done, what you have achieved by doing this program, you have transferred or you have converted. क्या convert किया आपने? Voltage into 8-bit data, 8-bit data
एंड ट्रांसफर्ड किसको ट्रांसफर किया है, एंड ट्रांसफर टू the processor which is 8051 and transferred to 8051. Okay, so this is the program that you have done. What was the program that you have done in the last class? You have converted the voltage into data. Kitna voltage? 10 voltage. You have converted 10 sample voltage to 10 8-bit data, and you have transferred that 10 8-bit data to 10 locations. Is it clear? So there is a difference between this program and the other program. Okay, वहाँ पे हमने 10 सैंपल को कन्वर्ट किया है और उस 10 सैंपल को हमने 10 लोकेशन पे स्टोर किया है, और वो 10 लोकेशन क्या थी, 30H 31H 32H से लेके 39H तक के लोकेशन पे हमने उस डेटा को ट्रांसफर किया। यहाँ पे हमारा काम जो था वो सिर्फ लेना था, जो भी एक सैंपल लेना था और उस एक सैंपल को हमें क्या करना था, एक्यूमुलेटर तक डालना था। ओके, इतना ही हमारा काम था। ओके, वी जस्ट वांट टू ट्रांसफर इट टू प्रोसेसर। अगर चेंज होता है, अगर आपको 10 बोला या 20 बोला, तो आप ये पूरे प्रोग्राम को एक लूप में डाल करके आपको उसको 10 बार या 20 बार इस पूरे प्रोग्राम को चलाना पड़ेगा। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है, एटलीस्ट अगर आप इतना भी लिख दिए, यू विल गेट 7 और 8 मार्क्स एटलीस्ट। वो बाकी जो है आपका लूप के लिए 2 मार्क्स कट जाएगा, 2 या 3 मार्क्स जो भी आपका लूप के लिए कट जाएगा, बट एटलीस्ट कन्वर्जन के लिए इतना की भी अगर आपने कर लिया, यू विल गेट 7 और 8 मार्क्स। इज इट क्लियर नाउ? इज दिस प्रोग्राम क्लियर? Yes. Yeah, so I'll just quickly pause it over here. Okay, so currently we have 70 students. Okay, so just want to get a confirmation कि किसी को MEP में कुछ problem आ रहा है, because only limited student are saying or stating anything into the class, बाकी सारे चुप बैठते हैं। Okay, I'll just inform one thing कि इस lockdown के time पे, okay, I'll just stop the presentation. Okay, I don't want to teach anything right now because I wanted to teach DAC, but